Previously we have covered the part primary distribution overheads. In this we discussed the way where we can distribute the various overheads on the basis of some apportionment. Now we are going to start with the practical question of the same. Now the question used to be very easy and simple. The only problem with you is to decide the base or the way on which you have to apportion the things. Generally it becomes easy from the information given. So please think thoroughly about the base. Now the question is like this. A small company is divided into 4 departments. A, B and C are production departments and D is the service department. The actual cost for a period are as follows. So you have been given various types of expenses. Following additional information is given. Particulars, department A, department B, C and D. Out of these 4 departments, 3 departments are production department and department D is a service department. And we are here given the information regarding the area, number of employees, HP of machines and various other bases are also given in rest of the question. Total wages, value of plant, value of stock and life points. So it is given department wise. Apportion the cost among various departments on equitable basis. Now you have to apportion whatever the cost is given to you in the question on equitable basis. Means deciding the correct base for every type of cost. Now whenever you have to solve such questions, a pattern like this has to be prepared, a table. This is a primary distribution summary. You will write the item of expenditure, the name of the expenditure. Then you will write the basis on which you are going to distribute that expense. What is the total amount that of expense? Means rent is of 10,000. Then you have to divide it into different departments. Now for example, we have here the very first is rent. The amount of rent is 10,000. Fine, we have to divide 10,000 among the 4 departments. Now how to solve that part? अब rent का हमें पता है कि rent always comes in the form of area. The higher the area, the higher will be the rent. So we are thinking to distribute it into the basis of area which is given to us as square feet. So we will what do here? We will get the ratio of these figures. Ratio of these figures which is 15, 11, 9 and 5. So what you will do, you will distribute this 10,000 in the given ratios which you have calculated now. So the very first base here is rent, total amount is 10,000, you have decided area, ratio is 15, 11, 9 and 5. And then this 10,000 will get apportioned in this ratio and each and every department will get his or her share. Next type of expense which is given to us is repairs to plant. It is rupees 6,000. Now again the repairs to plant depends upon the plant value which we have. It will not depend upon the area, it will not depend upon the number of employees, not on HP of machine, not on the basis of total wages. But yes, जितनी प्लांट की वैल्यू होगी उतना ही आपको रिपेयर का खर्चा आएगा. तो जिस डिपार्टमेंट में प्लांट ज़्यादा है रिपेयर का खर्चा भी उस डिपार्टमेंट को ज़्यादा बियर करना पड़ेगा. देन नेक्स्ट स्टॉक के बेसिस पर भी नहीं हो सकता, लाइफ पॉइंट के बेसिस पर भी नहीं हो सकता. मीन्स आपको क्या करना है, जो भी आपको खर्चा गिवन है आपको उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को देखना है कि जो बेसिस हमें गिवन है उनमें से कौन सा बेस सबसे ज़्यादा सूटेबल है. तो आपको सूटेबिलिटी के बेसिस पर ही उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को अपोर्शन करना है. सो हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ प्लांट लेंगे तो हमने वैल्यू ऑफ प्लांट को अपोर्शन करना है. रिपेयर्स लिखा, उसकी टोटल कॉस्ट लिखी. अब वैल्यू ऑफ प्लांट की रेशो निकालेंगे. 24 रेशो 1.8 रेशो 1.2 रेशो 6. उसको फर्दर कैंसिल करते जाओ जितना पॉसिबल है और वो आपकी ये रेशो आ जाएगी. 6 पर पूरा जा रहा है. सो 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4. उसके बेसिस पर 6,000 को सभी डिपार्टमेंट्स में अपोर्शन कर दिया. इन द सेम वे हमें जो नेक्स्ट एक्सपेंडिचर दिया है वो दिया है डेप्रिसिएशन का. अब जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंडिचर होता है वो अगेन किस में इनकर किया जाता है, प्लांट की वैल्यू में. जितना ज़्यादा प्लांट उतनी ही ज़्यादा आपकी डेप्रिसिएशन. अगेन इसको भी किस में हम अपोर्शन कर देंगे, प्लांट की वैल्यू के बेसिस पर. नेक्स्ट एक्सपेंडिचर हमें दिया है लाइटिंग का. इट इज गिवन हियर द एक्सपेंडिचर इज ऑफ लाइटिंग. अब ये जो लाइटिंग का 1000 एक्सपेंडिचर है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. नॉर्मली लाइटिंग को नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है.
जिस भी डिपार्टमेंट के पास ज़्यादा लाइट पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स वो ज़्यादा लाइट कंज्यूम करेगा, तो उसको ज़्यादा खर्चा लेना पड़ेगा. सो लाइट पॉइंट्स, लाइटिंग को लाइट पॉइंट्स के वे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सो हेयर इज़ योर लाइटिंग, लाइट पॉइंट्स. लाइटिंग का टोटल खर्चा 1000 का है. यहाँ से आप रेशो निकालोगे 4, 3, 2, 1 और उसके बेसिस पर हमने इस पूरे के पूरे एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर दिया. देन जो नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सपेंस हमें गिवन है, दैट इज गिवन टू अस एज सुपरविजन. अब सुपरवाइज करना किसको होता है? एम्प्लॉयज़ को करना होगा. तो जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उतनी ज़्यादा सुपरविजन का एक्सपेंडिचर है. अब क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी गिवन है. हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग एम्प्लॉयज़ आपको गिवन है. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको इन एम्प्लॉयज़ की रेशो निकालनी है और जो सुपरविजन का खर्चा है उसको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. देन नेक्स्ट हमें दिया हुआ है फायर इंश्योरेंस. अब जो फायर इंश्योरेंस का खर्चा होता है वो हम स्टॉक के लिए मेंटेन करते हैं कि स्टॉक को कहीं कोई नुकसान ना हो जाए. फायर इंश्योरेंस उसके लिए लिया जाता है. तो जितनी अमाउंट ऑफ स्टॉक है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उस बेसिस पर हम उसको एलोकेट कर देंगे. अगर यहाँ पर 0 है तो इसको कोई भी शेयर नहीं मिलेगा और यू कैन से इट विल गो एज निल. नेक्स्ट पार. अब जो पार का खर्चा होता है वो हमेशा HP के रेशो में जाता है. HP आपको दिया हुआ है, हॉर्स पावर मशीन्स की दी है, तो उसमें आप इसको अपोर्शन कर दोगे. एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस लाइबिलिटी दिया है, अगेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में जाएगा, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की रेशो में कर दिया. एट द एंड आपको हर एक एक्सपेंडिचर का टोटल कर देना है रो वाइज, कॉलम वाइज. और आपका जो ये वाला पार्ट है, ये पर्टिकुलर 4 डिपार्टमेंट्स का टोटल इस टोटल से मैच करना चाहिए और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा. मीन्स आपको कभी भी कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न याद नहीं करना है, आपको थॉरोली पढ़ना है उसको कि क्यों उन्होंने उसको इस बेसिस में लिया है. दैट्स द ओनली थिंग विच विल हेल्प यू इन सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स. अभी तक हमने सिर्फ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया था. अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, व्हाट वी डिड इन दैट क्वेश्चन, हमारे पास 4 डिपार्टमेंट्स थे जिनमें से 3 डिपार्टमेंट्स हमारे प्रोडक्शन के थे और 1 डिपार्टमेंट हमारा सर्विस था. तो जो भी एक्सपेंस था हमने उनको इक्वली सभी के सभी डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया. इक्वली नहीं, इक्विटेबल बेसिस पर सभी डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कर दिया. अब उस पर्टिकुलर मेथड को बोला जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. सेकेंड जो मेथड होता है कॉस्ट को अपोर्शन करने का, वो होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, हमने एक पर्टिकुलर एक्सपेंस को प्रोडक्शन में या सर्विस में सभी डिपार्टमेंट्स में डिवाइड तो ज़रूर करना है, बट जो भी आपका सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा होगा उसको दोबारा से आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कर देना है. अब ये ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि जो भी आपके खर्चे होते हैं वो मेनली प्रोडक्शन के होंगे. सर्विस डिपार्टमेंट करता क्या है, वो सप्लाई करता है. तो इस वजह से हम डिफरेंट मेथड्स फॉलो करते हैं जिनके थ्रू सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो किया जाए. अब उसमें सबसे फर्स्ट मेथड जो हमारे पास आता है वो आता है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड. मतलब डायरेक्टली जो भी आपकी सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट होगी, अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इज डायरेक्टली अपोर्शन टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विदाउट अपोर्शनिंग इट टू द सर्विस डिपार्टमेंट. यहाँ पर आपको सर्विस डिपार्टमेंट को अपोर्शन ही नहीं करना. कुछ ऐसे मेथड्स होंगे जहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट को पहले अपोर्शन करोगे, बाद में प्रोडक्शन को उनकी कॉस्ट देनी है. कुछ मेथड्स ऐसे हैं जहाँ पर सर्विस को कुछ देना ही नहीं है, आपको सारे का सारा प्रोडक्शन को ही अपोर्शन करना है. So under this method, the services rendered by one service department to other service departments are ignored and they are not considered in the process of reapportionment at all. जो एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कोई सर्विस दे रहा है, उसके खर्चे को कंसीडर नहीं किया जाता. सो एक इसका एग्जाम्पल है विच विल हेल्प अस टू नो the expenses of the 2 production departments, P1 and P2, and the 2 service departments S1 and S2 are given as under. क्वेश्चन में हमारे पास 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं और उनके रिगार्डिंग हमें कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस गिवन हैं. सो दीज आर द एक्सपेंसेस जो हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग दे दिए. मतलब जो हमने प्रीवियस मेथड किया था ये इन्होंने ऑलरेडी सॉल्व करके हमें दे दिया कि P1 डिपार्टमेंट की इतनी टोटल कॉस्ट है, P2 की इतनी है, S1 एंड S2 की इतनी है. Apportion the expense of service department S1 in proportion of 3:2 and those of service department S2 in the ratio of 2:1 to the production departments P1 and P2 respectively. आपको अब क्या करना है, सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं 4000 एंड 3000 उनको अपोर्शन करना है 3:2 में. जो सर्विस डिपार्टमेंट का है उसको 3:2 में करना है 1 को. जो सर्विस डिपार्टमेंट 2 है उसके खर्चे को 2:1 में अपोर्शन करना है टू द वेरियस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स. सो उसके लिए क्या करना है, आपको एक ये सिंपल फॉर्मेट बनाना है जहाँ पर आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और सर्विस डिपार्टमेंट्स को नोट डाउन करना है.
ये पार्ट हमें ऑलरेडी गिवन है, हमने डायरेक्टली क्वेश्चन से ही पिक किया। आपको अब क्या करना है, सबसे पहले ये जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 है उसकी रेशो हमें बताई है कि वो किस रेशो में जाएगा, 3:2 में। तो इसको 3:2 में प्रोडक्शन 1 एंड प्रोडक्शन 2 को अपोर्शन कर दो, 2400 1600। यहाँ से ये वैल्यू निल हो जाएगी और यहाँ दोनों में ऐड हो जाएगी। फिर हमें बोला है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट 2 है उसके जो 3000 का खर्चा है उसको अपोर्शन करना है आपको 2:1 में। सो 2:1 में हमने जब अपोर्शन करना है, वी हैव कैलकुलेटेड द अमाउंट एज 2000 एंड 1000। अकॉर्डिंगली इन दोनों डिपार्टमेंट्स में दिस अमाउंट विल गेट एडेड एंड इन द सर्विस डिपार्टमेंट 2 इट विल बिकम 0 बिकॉज वी हैव टू रिड्यूस दैट अमाउंट टू 0 पार्ट। अकॉर्डिंगली जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 है उसकी कॉस्ट भी अपोर्शन हो गई, सर्विस डिपार्टमेंट 2 है उसकी कॉस्ट भी अपोर्शन हो गई, और सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट 0 हो गई और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, कि सर्विस डिपार्टमेंट को अगर कोई कॉस्ट एलोकेट हुई भी है तो हमने उसको 0 करना है, उनकी कॉस्ट को आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देना है। रेशो आपको नॉर्मली गिवन होगी क्वेश्चन। सो दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सॉल्व दिस पार्ट, we will continue with the next video and next topic.